ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। The resultant of two like parallel forces P and Q acting at capital A and B 8 centimeter apart is 40 kg and passes through a point C such that AC equal to 3 centimeter. Find the magnitude of the forces. If the forces are simply interchanged, then resultant passes through C dash. Find CC dash. ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੀ ਕਿਊ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਟੂ ਲਾਈਕ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਪੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਊ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਏ ਆ, ਇਹ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ R ਹੈਗਾ ਇਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ AC ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ AC ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, BC ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, BC ਆ ਜਾਏਗਾ 8 - 3 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। AC ਨਿਕਲ ਗਿਆ, BC ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 40 ਗਿਵਨ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। R 40 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਸੋ R ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਗਿਵਨ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ P + Q। P + Q ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਆ। ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ P × AC Q × BC। P × AC, AC ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੱਢੀ ਆ 3 ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। BC ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ 5। therefore P ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5Q/3। ਇਹ P ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਫਸਟ, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8Q/3 = 40। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ Q = 15। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਲਓ ਵੈਲਿਊ। therefore from 2 P ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ 25। ਇਹ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ P ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, Q ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। P ਤੇ Q ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ
ज़्यादा नूमैरिकल देखने ने ते समझना की है। सैकेंड पार्ट की कहता सीगा, जे आपां इंटरचेंज कर दईए आपस च, एक गल्लां जिहड़ियां हैगियां च होर भी ध्यान रखने, अपनी कॉमन सेंस भी नाल यूज़ करी जानी। ये पहला भी दस्सिया सीगा, जे तां दोने फोर्सिस वड्डियां ने बराबर ने, मतलब ये भी 10 न्यूटन की फोर्स आ, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स आ, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर चों निकलेगा। ये कॉमन सेंस आ अपनी। जे एक फोर्स जिहड़ी हैगी आ 20 न्यूटन की आ, ये पहला भी गल की, एक फोर्स 10 न्यूटन की है, तो रिजल्टेंट का झुकाव या रिजल्टेंट वड्डी फोर्स वाले पासे ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट सेंटर तो इधरले पासे होगा। ये पहले कॉमन सेंस से गल्लां ने अपने, पहला भी गल की हुई है अपने। रिजल्टेंट मान लो 30 न्यूटन होएगा, सॉरी रिजल्टेंट जिहड़ा हुंदा हैगा, जे दोने फोर्सां बराबर ने फिर तो सेंटर विच होगा, अदरवाइज जिहड़ी फोर्स वड्डी रिजल्टेंट उधर होगा। ये तुसीं आप दिमाग आप भी दिमाग ला सकते हैं। ये 3 सेंटीमीटर सीगी, ये 5 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट एरिया वाले पासे ज़्यादा है, तो पी वड्डा होगा, क्यों छोटा होगा। जो कढ़िया आप पी वड्डा है, क्यों छोटा है। ये सारा है दिमाग चलाई जाना नाल अपने, बिना प्रैक्टिस तो बिना नूमैरिकल सॉल्व किए ये दिमाग नाल नहीं चलेगा। इसलिए काम नाल करी जाओ। ਇਹਦਾ सैकेंड डायग्राम की हैगा, यही चीज है बिल्कुल, पी ते क्यों इंटरचेंज करने आप, यही डायग्राम बनेगी। इत्थे ए हुण ये समझ के चलाना काम। हुण इधर आप क्यू लै ली, क्यू मतलब कि इधर आ गई 15 दी फोर्स, इधर की आ गया पी आ गया, कितनी फोर्स है जी ये 25 कड्डी आप हुण। पी क्यू इंटरचेंज करने ने, पहला रिजल्टेंट सी ते लग रहा सी, हुण तो लग ही रहा होगा पता। पहला रिजल्टेंट तो पी वाले पासे सीगा, सेंटर आ सेंटर मान लो चाहे इधर पासे सी, हुण रिजल्टेंट भी एरिया वाले पासे होगा बिकॉज ये फोर्स बड़ी है, तो रिजल्टेंट इत्थे किते होगा, मान लो सी डैश ते कहते रिजल्टेंट आ रहा, रिजल्टेंट किन्ने दा 40 है। ये सी पाया कि जदों आपां ने इंटरचेंज नहीं कीतियां सी, रिजल्टेंट पहले इत्थे लग रहा सीगा, पहले इत्थे लग रहा सी, जदों आपां इंटरचेंज करतियां तो हुण लग रहा पता कि वड्डी फोर्स वाले पासे रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट सी डैश ते गिवन आप आ डिस्टेंस कढ़ना कितना सी सी डैश, कोई खास औखा नहीं हैगा, ये आप कर लें, समझ आ जाएगा। जे ए सी डैश निकल जाए वो निकल जाएगा, जो करते हैं आप आह डिस्टेंस जिहड़ा हैगा ओवरऑल डिस्टेंस कितना हैगा 8। ये तरीका ध्यान रखना, अगे नूमैरिकल आप इदां दी कर लेने। जो डिस्टेंस 8 है, डिस्टेंस ये पता नहीं है, इनू आप एक्स मान लो, दायरा दे विच ही मनना सारा, तो आह डिस्टेंस कितना होगा जी 8 माइनस एक्स ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल 8 है ना, तो फॉर्मूला की होंदा ये इंटू आह पी इंटू ए सी क्यू इंटू बी सी, मैं देयरफॉर आल्सो सीधा दिस इंटू दिस बराबर होंगे 15 इंटू 8 माइनस एक्स 25 इंटू एक्स। ये सॉल्व कर लवांगे आप, ये 120 आ जाएगा माइनस 15x 25x, एक पास लै जाओ 120 इक्वल टू 40x, x कितना आ गया 3, x 3 आ गया। तो आ डिस्टेंस कितना होगा ए सी डैश, ये आऊगा 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 सेंट। हम दिमाग ला सकते हैं आप किवें, आ डिस्टेंस का 5 सेंटीमीटर लिया आपने हुणी कढ़िया, ते आ डिस्टेंस कितना गिवन सी आपां नूं जी 3 पिछे दिता है आपने। आल्सो ए सी कितना हैगा 3 सेंटीमीटर, ओवरऑल 5 है जी, ते आ डिस्टेंस कितना अपने को 3 है, तो आ की होगा पूरे विचों ए माइनस कर देवांगे कि देयरफॉर सी सी डैश की आऊगा ए सी डैश माइनस ए सी डैश चो ए सी माइनस कर देवांगे, ए सी डैश कितना 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।
कंसैप्ट ਉਹੀ है बस ਇਹਦੇ दो डायग्राम मिस हो गई कि पहला ये भी डायग्राम देखनी है ਤੇ ਆ ਵੀ डायग्राम देखनी है। ਇਹ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AC डिस्टेंस लिया ਤੇ ਆ डायग्राम भी देखनी है। ਕੰਮ कंसैप्ट सारा पुराना ही है बाकी तो। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਬ कर ਲਈਏ। देखो ये डायग्राम ना अपनी सही बने, डायग्राम ना सही बने क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। बिना प्रैक्टिस तो मैं दोबारा कह रहा कि बिना प्रैक्टिस तो तुहाडी डायग्राम जिहड़ी हैगी है वो सही नहीं बननी। तो नैक्सट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, स्टेटमेंट तुसीं भी देख लो जी। ये हैगा अपने कोल the resultant of parallel forces P at A and R at B passes through C on AB so that AC equals to A, BC equals to B. If the resultant of R at A and Q at B also passes through C, show that B ratio A equal to P minus R ratio R minus Q। जो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ये करना अपन। ये जो दो डायग्राम मिस हो गई, दो डायग्राम मिक्स कीतियां हुई हैं। किवें है जी, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस P ते R। पहला P ते R की गल हो रही है, ध्यान दियो। आ P है जी, आह R है, ये A है, A B है। इन्हां दा रिजल्टेंट C चो पास कर रहा है, मतलब दिता है अपन रिजल्टेंट पासे थ्रू C ऑन A B। इहदा रिजल्टेंट की ले लिया आपां ने, लोड़ नहीं पैनी वैसे आपां। इहदा रिजल्टेंट जिहड़ा हैगा ਉਹ ਆਪਾਂ R1 ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ C ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ A ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ B ਹੈ। AC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ BC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ R ਐਟ A, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, A B ਉਵੇਂ ਨੇ, ਆ A ਆ B ਆ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ P लग रही सी A ते, हुण R फोर्स लग रही है A ते, R फोर्स आही है ते B ते फोर्स लाई हैगी आ Q एट B, B ते Q फोर्स लग रही है, आ Q फोर्स तां भी दोनों का रिजल्टेंट जिहड़ा होगा C चों पास करेगा। हुण इहदा रिजल्टेंट जिहड़ा हैगा ये भी आपां C चों पास करा लिया। डॉटेड बना लो, चाहे लोड नहीं, मैं तां डॉटेड बना लिया, चाहे सीधा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप बना सकते। R1 R2 ये डिस्टेंस भी हुण A अते B हन ते आपां की शो करना कि B अपॉन A इज इक्वल टू P माइनस R रेशो R माइनस Q। जो तो सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व करांगे। देखो रिजल्टेंट कट्टन की गल नहीं कही उन्होंने, ये रिजल्टेंट ना रिजल्टेंट की होना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज नहीं होना। वैसे रिजल्टेंट की आऊगा R1 ए P प्लस R आऊगा, ये R2 की होगा R प्लस Q होगा। रिजल्टेंट की गल कितने नहीं हो रही, तो ये वाला फॉर्मूला अपना यूज नहीं होगा। तो सीधा फॉर्मूला की होगा, ये डायग्राम फर्स्ट आ, ये डायग्राम सैकेंड। फ्रॉम डायग्राम फस्ट डायग्राम देखिए आप P इंटू सीधा पारने आप A R इंटू B, ये बराबर होगा। क्वेश्चन सौखा ही है, देखा आप ये चो P कढ़ लो, कितना हो जाएगा, जी मर्जी की वैल्यू कढ़ लो, R B अपॉन A ते फ्रॉम डायग्राम टू, डायग्राम दूजी देखिए आप R इंटू A
इक्वल्स टू क्यू इंटू बी, ये क्यू कढ़ लो जी, आर ए अपॉन बी। ठीक है, निकल गई वैल्यूज। बाकी सॉल्व किवें करना देखो, सॉल्व आपां किवें करना देखो। राइट हैंड साइड लईए आपां, राइट हैंड साइड आपां नूं गिवन है जी P माइनस आर बटा आर माइनस क्यू, ये ले लिया। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा होगा, इन्हों बी अपॉन ए लैके आना। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा होगा, हम P पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्यू पता, वैल्यू भर ਦਾਂਗੇ, सारा आर की फॉर्म च आ जाऊगा तो आर आर कैंसल हो जाऊगा। बाकी करते हैं आप आर पी अपॉन ए माइनस आर बटा आर माइनस आर ए अपॉन बी। एक क्यू ते पी की वैल्यू भरी है जी, आप एलसीएम ले लो, आर बी माइनस आर ए अपॉन ए बटा आर बी माइनस आर ए अपॉन बी। ये देखो आर बी माइनस ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ये की आ गई इक्वल टू अपने को लैफ्ट हैंड साइड। मेन डायग्राम सी ते इको फॉर्मूला यूज किया, बाकी 10th लैवल दियां कैलकुलेशनस कीतियां ने, वो अपना आंसर आ। सो ये दो डायग्राम का क्वेश्चन सीगा। हुण जिहड़ा क्वेश्चन आपां पहला किया, हुणी किया इस तो पहले वाला, जिस रिजल्टेंट देखिया सी कि कितना चेंज हो रहा, और पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना आपां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये जो न्यूमेरिकल आपां करन लगे तां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपां हुण तक जिन्ने क्वेश्चन किए है ने वो लाइक पैरेलल फोर्सेस किए ने, लाइक पैरेलल फोर्सेस दे। ये अनलाइक पैरेलल फोर्स से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तां भी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, देखो, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पी क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू, एक्ट एट 2 points x unit apart, show that if the direction of P is reversed, the resultant is displaced through a distance 2pq अपॉन पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू एक्स यूनिट्स। हुण है कि देखो डायग्राम प्रॉपर बन गई, बाकी का काम फॉर्मूला सौखा ही है, और डायग्राम बना रहे हैं आप। हुण ये फोर्स किवें आ, जिवें आ लाइन आ ए बी, इन्हां विच एक्स यूनिट अपार्ट आ, ये एक्स यूनिट, इन्हां विच डिस्टेंस एक्स आ, मतलब ते अनलाइक पैरेलल फोर्स ने मान लो क्यू आप इधर मान ली तो पी आप इधर मान ली, पी वड्डी आ क्यू नालों। वड्डी छोटी की लोड़ क्यों पैंदी है, पता होवे, इन्हें पढ़िया होगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस रिजल्टेंट बाहरले पासे होगा, ਜਾਂ इधरले पासे होगा ਜਾਂ इधरले पासे होगा। जिहड़ी फोर्स बड़ी होगी उधरले पासे होगा तो उसे डायरैक्शन च होगा। डॉट बनाना समझाने वास्ते, इत्थे होगा तो उसे डायरैक्शन दे विच होगा, और बाहरले पासे होंदा जी। ये फर्स्ट डायग्राम बन गया अपना, ये सी पॉइंट ले लिया। सैकेंड डायग्राम जिथे की हुई है, फर्स्ट डायग्राम हो गई जी। वो कहते हैं जे पी नूं आपां रिवर्स कर दी, रिवर्स मतलब कि पी नूं चक के पहला पी इदां सीगा, इनू चक के आपां इदां करता, रिवर्स कर डायरैक्शन उल्टी करती है। जे पी नूं रिवर्स करांगे इहदा मतलब की बन गया, पी ते क्यू की हो गए लाइक पैरेलल। फिर डायग्राम कितना बनेगी, पी इधर क्यू है। हुण रिजल्टेंट विच आऊगा, यह रिजल्टेंट जिहड़ा हैगा मान लो इत्थे आ गया रिजल्टेंट। हुण फर्क पेगा जी, ये R1 मान लिया, रिजल्टेंट कुछ होर होगा, पी माइनस क्यू होंदा, इत्थे रिजल्टेंट पी प्लस क्यू, ये रिजल्टेंट पी प्लस क्यू होंदा जी। तो रिजल्टेंट आ लै लिया अपना, ये हुण सी डैश ते आ रहा मान लो, मतलब देखियो ध्यान नाल, मेरी डायग्राम इकट्ठी बननी सी समझाने वास्ते है, ये विच ही पा लेना। जब आप डायग्राम इकट्ठी पा लेना, इत्थे इक्को लाइन च इत्थे सी पा ली। की हैगा अपने कोल पहला रिजल्टेंट इत्थे सीगा,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਉਰੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 2pq अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x होगा। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ सॉल्व करना, सी डैश डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ, जो बाकी निकल जाएगा। देखो रिजल्टेंट की गल कितने नहीं हो रही, ये रिजल्टेंट ना फाइंड करने वास्ते क्या, तो ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, सीधे फॉर्मूले कर रहे हैं। चलो आप फ्रॉम फस्ट डायग्राम, ये लाई डायग्राम आपने इतों की होगा P इंटू AC Q इंटू BC, समझना ध्यान ना, फॉर्मूला सेम आ, P इंटू AC Q इंटू सारा BC। हुण आ डिस्टेंस नहीं पता AC कितना हैगा, इन्हूं मान लो चाहे इन्हूं आपां Y सपोज कर लेना डिस्टेंस, मतलब लैट किता, लैट AC कितना अपने को Y है, तो फॉर्मूला की बन गया अपने कोल, इहदे विच भरिया PY इक्वल टू Q, BC कितना होगा जी, BC होगा अपने को X प्लस Y, X प्लस Y सारा BC होगा। ये चो Y कड्डो कितना होगा, Y कढ़ लैने आपां, इहनूं सॉल्व किया जी, कितना बनेगा, दिस इंप्लाइज PY इक्वल टू QX प्लस QY, एक पासे ले आंदा जी, PY माइनस QY इक्वल टू QX, तो Y अपना आ गया जी QX अपॉन P माइनस Q। यह आपां आ डिस्टेंस कढ़ लिया AC, ये डायग्राम चो आप AC कढ़िया, अगे कर रहे हैं आपां, यह डायग्राम दे विचों आपां AC डैश कढ़ांगे, AC निकल गया, ये चो AC डैश कढ़ांगे, दोनों जोड़ देवांगे, वो CC डैश आंसर आ जाएगा। जो करते हैं बाकी लग जाएगा पता। हुण कर रहे हैं आपां फ्रॉम सैकेंड डायग्राम, आ डिस्टेंस आपां जिहड़ा AC डैश हैगा इहनूं आपां मान लिया Z, आ डिस्टेंस आपां Z मान लिया, ये सारा डिस्टेंस कितना सीगा जी X, तो आ डिस्टेंस कितना होगा, देयरफॉर जिहड़ा BC डैश हैगा डिस्टेंस वो आ जाऊगा जी X माइनस Z, X माइनस Z आ जाऊगा। देयरफॉर आल्सो फॉर्मूला की बनेगा P इंटू यही डिस्टेंस, P इंटू P इंटू AC डैश इक्वल्स टू Q इंटू BC डैश। फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है, मेन प्रॉपर्ट है सही बन गई, फॉर्मूला अपन पता है, बाकी 10th लैवल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 10th लैवल दी कैलकुलेशंस। चलो इतों आ गया अपने को, फिर ये कड्डे हुए ने अपने, ये आ गया P इंटू Z Q इंटू X माइनस Z, एक पासे इकट्ठा कर लिया PZ प्लस Z कटना आपका चो QX आ गया, तो Z कितना आ गया QX अपॉन P प्लस Q। अगे कर रहे हैं आप इस तो बाद इधर कर रहे हैं नाउ CC डैश डिस्टेंस के बराबर होगा, यह होगा AC प्लस AC डैश डिस्टेंस आ कटना अपने। हुण AC प्लस AC आपां की मन्निया है जी, यह आपां डिस्टेंस मन्निया सी Y, AC डैश कितना अपने को Z, हुण Y भी कढ़ लिया आपां Z भी कढ़ लिया, इह भरांगे सॉल्व करांगे अपना आंसर आ जाएगा। ये करते हैं सॉल्व, वो देख लो Y
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ QX अपॉन P माइनस Q, Z आ गया QX अपॉन P प्लस Q, एलसीएम ले लो ਇਹਦਾ PQX Q स्क्वायर X PQX माइनस Q स्क्वायर X बटा नीचे आ जाऊगा A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये कट गया जी, ये आ गया 2PQ P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर X, यही आपाने शो करना सी। बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं, मेन तो फॉर्मूले छोटे ही नहीं होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्स का क्वेश्चन है जी, ये पहला क्वेश्चन आया अपना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर च भी आया है। ये पर बेस्ड एक होर न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जी। ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्स का ही है, पहला रब कर लिए आप। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, तुम स्टेटमेंट देख लो जी। P and Q are magnitudes of two like parallel forces। like parallel forces का क्वेश्चन करांगे अपन। Two like parallel forces, if the second force is moved parallel to itself at a distance x, prove that their resultant moves through a distance QX upon P plus Q। जे डायग्राम समझ आएगी क्वेश्चन सौखा ही आ। डायग्राम विच की हैगा कि यह दो लाइक पैरेलल फोर्सेस ने, एक P है जी एक Q, इन्हां रिजल्टेंट मान लो C ते एक्ट कर रहा है, A B पॉइंट ने, मान लो रिजल्टेंट C ते आ गया, R ले लिया रिजल्टेंट। हुण की कीता उन्होंने सैकेंड फोर्स दूजी फोर्स ये मूव करनी है, मूव कितना करनी हैगी आ पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब इदा मूव करनी है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। आ फोर्स चक के एक्स यूनिट अगे ले गई, पैरेलल टू इटसेल्फ हो गया कि जिमें यह आ उदा ही रखनी है पैरेलल आप, मतलब डायरेक्शन सेम रखनी है, मतलब तुसीं ये फोर्स चक के इदा नहीं लेके जानी टेढ़ी, ये फोर्स इदा ही लेके जानी है पैरेलल। तो डायग्राम मेरे विच ही बना, जो डायग्राम चाहे अलग बना लेने आप, चाहे विच ही बनाने डायग्राम आप। आह पॉइंट आ बी डैश से लै गए आप, आह फोर्स इत्थे आ। ये डायग्राम मैं जान के मिक्स कर रहा कि तुम मिक्स डायग्राम भी आनी चाहिए बनानी, दो अलग अलग भी बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हो। मिक्स मैं बना के दिखा रहा कि तुम्हें ये भी आनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस आप एक्स अगे मूव करांगे, एक्स डिस्टेंस अगे लै गए, तो लग रहा होगा हुण की है, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है, इसका रिजल्टेंट कित्थे होगा पता नहीं कित्थे आऊगा, मान लो इत्थे कित्ते आऊगा रिजल्टेंट C डैश। जे डायग्राम समझ आ रही हो, दोनों रिजल्टेंट R लवांगे इस केस, क्योंकि फोर्सेस सेम ने, आ P आ Q आ भी PQ फोर्सेस, जो रिजल्टेंट की लोड़ भी नहीं पैनी वैसे अपन। डायग्राम दो मिक्स कट्ठियां मिक्स कीतियां ने, आप कट्ठियां भी डायग्राम बना सकते हैं, बाकी थोड़ी मर्जी है। जिवें पिछे आप अलग अलग बनाई सी, तुसीं भी इत्थे अलग अलग बना सकते हैं। मिक्स भी अपन आनी चाहिए, तो मैं मिक्स बनाई है इस बार। आ P ते Q आ गया, इसका रिजल्टेंट ये है। जे Q चक के आप एक्स अगे लै गए, इत्थे कित्ते आ गए, लग रहा होगा पता कि एक आ फोर्स आ एक आह फोर्स आ, रिजल्टेंट भी अगे आऊगा, तो वो रिजल्टेंट कितना मूव करेगा, कितना अगे आऊगा, ये आप शो करना इस केस कि C डैश इक्वल्स टू QX अपॉन P प्लस Q, ये आप शो करना। हुण ये भी कोई खास पहले वांगू ही आ, ये पहली डायग्राम ते आपां पहला आप अलग ला देंगे, दूजे आप अलग ला देंगे। नाउ व्हेन Q इज नॉट मूव्ड, जो डायग्राम आप अलग अलग बनावांगे, फिर लिखांगे फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम
ਹੁਣ डायग्राम मैं इकट्ठी बनाई है। पहला की चीज़ देख रहे हैं, जो क्यू मूव नहीं किया उदों इत्थे सीगा, तो फॉर्मूला की बनेगा P इंटू ए सी क्यू इंटू बी सी। ये आ गया, इथों ए सी कढ़ लो, कितना होगा, दिस इंप्लाइज ए सी आ गया क्यू इंटू बी सी बटा पी, तो जो भी आ गया डिस्टेंस पढ़ ले। हुण अगे ले रहे हैं वैन क्यू इज मूव, जो आप क्यू में मूव करता, हुण डायग्राम आ बन गई। ये की आऊगा पी इंटू रिजल्टेंट इत्थे आ गया पी इंटू ए सी डैश क्यू इंटू आ गया सारा बी सी डैश। इथों कढ़ लिया देयरफॉर ए सी डैश कितना आ गया क्यू इंटू बी सी डैश अपॉन पी। ये आ गया। हुण इस तो बाद अगे सॉल्व करना, हुण आपां ये दोनों सबट्रैक्ट कर लवांगे, तो देखो लग जाऊगा पता जी। नाउ हुण ए सी डैश क्यों कटे लग जाए पता जी, ये लग रहा होगा पता। ए सी आ गया ए सी डैश आ गया, कटना आप सी सी डैश सीगा, हुण ए सी डैश चों आप ए सी सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सी सी डैश की बनेगा ए सी डैश माइनस ए सी सी डैश की होगा आह ए सी सारे विचों ए सी आप सबट्रैक्ट कर। हुण ए सी डैश भी कढ़िया है, आप ए सी भी कढ़िया है। ए सी डैश भरता क्यू इंटू बी सी डैश अपॉन पी माइनस क्यू इंटू बी सी अपॉन पी। ये चो क्यू अपॉन पी बाहर आ गया, बी सी डैश माइनस बी सी। बी सी डैश माइनस बी सी। थोड़ा जिहा ये थोड़ी गलती हो गई, ये पहला आना सीगा ये देखो क्यू मूव किया पी इंटू ए सी डैश आना सी, ये क्यू इंटू बी डैश सी डैश होना सी। आ डिस्टेंस होगा क्यू इंटू बी सी डैश, बाकी ठीक है सर। क्यू इंटू बी डैश सी डैश आ गई। हूँ देखो बी डैश सी डैश माइनस बी सी, हुण ये दिमाग लाना कि की बनूगा, सो लिख रहे हैं आप क्यू अपॉन पी, ये की है सी सी डैश। देखियो ध्यान वाले कि आप लिख सकते हैं, बी सी डैश होगा बी सी डैश ये कि बराबर आ जी एक्स प्लस, बाकी सिंपल 10th लैवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर 10th लैवल की आ बी डैश सी डैश की होगा ये बी बी डैश प्लस बी सी डैश होगा, बी बी डैश कितना एक्स एक्स प्लस बी सी डैश होगा माइनस बी सी की होगा। देखो जी बी सी हैगा ओवरऑल बी सी, ये हैगा बी सी डैश बी सी डैश प्लस सी सी डैश। बाकी सिंपल जो कैलकुलेशंस ने वो सॉल्व कर रहे हैं, ये कट गया आपस, तो इतों की आ गया सी सी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन पी एक्स माइनस सी सी डैश। कटना की आप सी सी डैश, ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करा एक पास ले आवांगे, आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया जी पी इंटू सी सी डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू सी सी डैश। हूँ सी सी डैश कटना अपने एक पासे इकट्ठा कर लो जी, सी सी डैश इकट्ठा किया ये पी प्लस क्यू आ गया जी, इधरों क्यू एक्स बन गया। Therefore we will get CC dash equals to QX upon P plus Q। यही आप रिजल्ट प्रूव करना। दिस इज द
ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਆਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।